दोस्तों, लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो बाय पोजिंग अ सिंपल क्वेश्चन टू यू. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट? मोस्ट लाइकली आप सब बच्चे बता देंगे दैट इट इज दैट पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट that consists of capital goods. It is that part of the final product that consists of capital goods. Can you tell me the next question, that is, what do you mean by GFCF? That is gross fixed capital formation. Probably बहुत सारे बच्चों को ये टर्म पता होगी. How many of you can tell me whether cultivated biological resources are a part of GFCF or not? Whether this GFCF or investment in general includes IPR or not? Let me push you a little further. We all know that the transfer of shares does not create new financial capital, right? तो ये तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होगा. What if a company decides to issue new shares? क्या ये IPOs जो होते हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेंगे? एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड कि क्या ये इन्वेस्टमेंट होता है या नहीं होता है. This is exactly where UPSC and even good tests like SFG trap serious aspirants. And don't worry, you are not alone. This is exactly what happened with most of our students on Telegram as well. Here's the result. आप देखिए, only 15% marked this question right. दोस्तों, today's this active recall session is an effort by a mentor who has cleared 3 out of 5 prelims and scored 17.17 marks above the cutoff. And the purpose is just one: to help you prepare micro level concepts chapter by chapter. I promise you guys that this active recall will be different. It has PK, it has aliens, it has PYQs, it has memes, it has Dolly Chaiwala. And most importantly, dosto, it has serious students who participated in this with full intensity. When you are done with this session, I would also urge you to join the Telegram channel and download the PDF of this session, as well as go and practice as many questions as possible, right? Today, in this session, we are going to discuss chapter 1 from Vivek Singh sir की book, and we are also going to discuss microeconomics from Mrunal sir की video. इसके notes भी मैंने आप लोगों के साथ share करें, so you can download that from the channel itself, right? तो फिर चलिए, शुभ काम में देरी कैसी? Put on your recall caps and let me take you to the session. So let's begin today's session. Okay, let me start with this छोटी सी स्टोरी. यहाँ पे अगर हम बात करें, आई विल गिव यू अ इनिशियल कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बोरोड फ्रॉम साइकोलॉजी ऑफ मनी. तो इफ एलियन कम्स ऑन 31 दिसंबर 2007, क्योंकि अभी न्यू ईयर था, तो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अ स्टोरी जो न्यू ईयर से रिलेटेड है. और 31 दिसंबर को वो आए और न्यूयॉर्क में आके देखता है, एंड ही सीज पीपल, ही वुड सी दैट पीपल आर हैविंग फन, पीपल आर हैविंग अ वेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत अच्छी है, अपने फोन्स पे लगे हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज इज वर्किंग वेल, राइट. एंड ही गोज ऑन टू से कि ओके चलो यहाँ पे सिनेरियो बढ़िया चल रहा है, ठीक है. एंड 2 years आफ्टर ही अगेन कम्स टू द सेम प्लेस and he finds out that people are dancing again, and 2009 में smartphones आ गए, medicine is better and everything looks better, right? If the alien goes on to survey even the rural areas, and even the rural areas as well as the urban areas, things would look better only, right? But the question is, were things better at this point of time? 2009 और 2007 के बीच में what happened that things were not as good as this alien was seeing, right? If we look at the scenario, things were not good. Why? Because the US households were 16 trillion poorer in 2009. And this happened, agar aap iske piche reason dekhoge, just listen to the story. If you look at this, the reason behind this was obviously the global financial crisis, right? You'll see that the stock market was completely broken America का. India थोड़ा बहुत सेव हो गया, उसके आगे हम रीजन देखेंगे आगे की क्लास में. But people were unemployed and everything was shattered, right? So what had changed? And if you look at what had changed, it was one simple thing: people's expectations had changed. 2007 में वो अपने आप को एक कहानी बोल रहे थे that households का जो प्राइस होगा, जो प्रॉपर्टीज के प्राइसेस होंगे, वो इवेंचुअली इंक्रीज करेंगे. बट they stopped saying that story in 2008, and that story is that कि हाउस होल्ड प्राइस अब इंक्रीज नहीं करेंगे. दिस लेड टू डिफॉल्ट्स ऑन लोन्स. जब डिफॉल्ट होने लगे तो बैंक्स को लॉस होने लगा, और बैंक्स को जब लॉस होने लगा तो बिजनेसेस को लैंड नहीं कर पाए, एंड दैट लेड टू अ पूरी विशियस साइकिल. नाउ वी हैव डन दिस एनालिसिस वन, एंड व्हाई आई एम डूइंग दैट, इसका जो कोर रीजन है वो मिला कहाँ पे हमें? एट द इंडिविजुअल लेवल, राइट? व्हेन यू स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल एजेंट की वजह से क्या हुआ है, दैट इज आवर एनालिसिस, राइट. So this is microeconomics for you, right? Now let us look at analysis 2, right? If we look at the level of countries, now आज की डेट में हम बोलते हैं कि कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है, राइट? तो हम बोलते हैं कि चाइना जो है ना, चाइना हैज बिकम 66% ऑफ द यूएस इकोनॉमी, राइट? वाइल
Soviet Union even at its peak was 57% of the US economy, right? Isn't it a more formidable competitor? Definitely. एंड सेम जब हम एनालिसिस करते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान का करते हैं, दोनों भाई दोनों देश सेम, बट बोथ आर नाउ स्टार्कली डिफरेंट। लाइक रादर पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो मुंबई शहर से भी कम है, राइट? वाई सो? ठीक है, जब हम ये एनालिसिस करते हैं, कंट्री लेवल पे एनालिसिस करते हैं, राइट, दिस इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बस सो दैट आई कैन सेट द कॉन्टेक्स्ट। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं पता है, बट सो दैट आई कैन सेट दिस कॉन्टेक्स्ट, राइट? नाउ लेट अस कम टू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। चार सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सबको पता है। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज द एंटरप्रेन्योर और जेठालाल जी बिलोंग टू? ठीक है, देखो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो है हमारा वो क्या है, हमारा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मोदी जी जो है वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, और जो हमारे पुष्पा जी हैं, बिकॉज ही डज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, राइट, सो ही बिलोंग्स टू द एक्सटर्नल सेक्टर। माय क्वेश्चन टू यू, डज द एंटरप्रेन्योर बिलोंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर और टू द प्राइवेट सेक्टर? हाँ जी, यस युक्ता, गो हेड। सर हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इजी क्वेश्चन है अभी, डोंट वरी, राइट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स, राइट? आप सबको पता है दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट होता है और फाइनल होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? माय फर्स्ट क्वेश्चन टू इज व्हाट आर, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? बताइए, रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, यस, ओके, सोनाली गो अहेड। सोनाली Which गो अहेड। goes in the production. विच गोज इन द प्रोडक्शन, ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? और बताओ, कनिका, गो Sir, अहेड। the goods that get used up in the process, in the production process. फाइन, वेरी गुड, ये थोड़ी और रिफाइंड है। एनीथिंग एनीवन वांट्स टू ऐड? और कुछ, विनी, यू वांट टू ऐड समथिंग? No, sir. It's just the goods which are used in the production of other goods. राइट, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट It's गुड्स होते हैं, आई not थिंक दैट्स। directly हाँ, consumed by us, ठीक है, not consumed by us. ठीक है, गॉट इट, ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय अस, ठीक है। और बताइए, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये दैट्स कंप्लीटली फाइन। इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन जो है वो है दे आर सेमी फिनिश गुड्स एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड, बहुत अच्छी बात बोल दी आपने, दैट दे कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली एज इट इज। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स ये होते हैं, राइट? नाउ इसमें अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसी चीज वो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकती, राइट? इट कैन नॉट बी सोल्ड एज इट इज, राइट? द एग्जाम्पल दैट द बुक गिव्स इज स्टील शीट्स। ठीक है, स्टील शीट्स को आप ऐसे नहीं बेच सकते, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगी ही होगी, इट इज नॉट द फाइनल एंड प्रोडक्ट, राइट? इट विल बी यूज टू क्रिएट अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल, और उसमें उसका कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है, राइट? दैट इज वॉट वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, नाउ दोस्तों अपने ना ये हैंड रेज जो है ना वो डाउन कर दिया करो जब वो ना हो, नहीं तो मुझे लगता है आपको डाउट है। ठीक है, सो सर एक एक डाउट या, था। हाँ दीक्षा, गो अहेड। पर इंटरमीडिएट गुड्स तो एंड कंजम्पशन पे डिपेंड करते हैं ना, मतलब मिल्क इज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर अ हाउस होल्ड बट राइट, इट इज अ राइट, फाइनल विल गुड टॉक, फॉर अ हाउस होल्ड बट इंटरमीडिएट फॉर अ पेस्ट्री शॉप फॉर एग्जांपल। राइट, विल तो टॉक अबाउट दैट। डायरेक्ट कंजम्पशन भी उसकी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द फाइनल यूजेज की वो जा कहाँ रहा है ना। बट फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं रहे, गुड ही नहीं रहेगा अगर उसका फाइनल कंजम्पशन हो गया वहाँ पे। पर कोई गुड बाय इट्स नेचर इंटरमीडिएट या फाइनल थोड़ी होगा, वो तो कंजम्पशन पे या फिर यूजेज पे इंटरमीडिएट या फाइनल बनता है ना। लेकिन अगर उसका कंजम्पशन ही कर दिया उसने तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड नहीं रहा ना। नहीं मैं ये व्हाट यू कह आर ट्राइंग टू रही से इज दैट, हाँ, हाँ, बाद में बात करेंगे इसकी, ठीक है, विल टॉक ठीक। अबाउट इट लेटर, राइट? ओके, नाउ डू दे कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये आप आंसर कर चुके हो। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट ऑल गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स किस किस प्रकार के होते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनल गुड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बता दो, अभी और टफ होता जाएगा लेवल, राइट? हाँ जी, ओके, गुड, ओके, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूम, देखो कोशिश करो कि टाइप कर लो, राइट? दैट इज बेटर, ठीक है, टाइप कर लो तो बेटर रहेगा। बिल्कुल, वेरी गुड, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स, दीज आर दी टू गुड्स जो इसमें आते हैं। नाउ कंजम्पशन में हमें पता है कि ड्यूरेबल गुड्स आते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर काइंड ऑफ गुड्स, राइट? कैन यू टेल मी व्हाट इज वन मोर काइंड ऑफ गुड्स जो कंजम्पशन गुड्स में आते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, सर्विसेज। नाउ गाइज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, कल को क्वेश्चन आ गया ना किसी भी सर्विस का, तो आपको याद रखना है दैट सर्विस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कंजम्पशन गुड। वाई? बिकॉज इट इज इमीडिएटली कंज्यूम्ड, ठीक है, इमीडिएटली कंज्यूम हो जाती है कोई भी सर्विस, ठीक है, इसलिए कंजम्पशन गुड इज गोइंग टू बी, उसमें सर्विस जब भी आएगी आपको उसे फाइनल गुड में ही डालना है, ठीक है, फाइनल गुड में ही डालना है, राइट? अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स में अगर आपको याद करना है तो उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, मैंने पिछले साल भी बात करी थी, जो पिछले साल फ्री हैंड होल्डिंग में थे उन लोगों को याद ही होगी ये बात, ठीक है, दैट या, तो इसके तीन फीचर्स होते हैं। हु इज गोइंग टू टेल मी द तीन फीचर्स? यस, थ्री फीचर्स ऑफ अ कैपिटल गुड, यस, यस, कैन यू टेल मी? क्या, कोई नहीं, डेफिनेशन बता दो,
कैपिटल गुड की डेफिनेशन क्या होती है? 3 फीचर छोड़ दो, जस्ट टेल मी व्हाट आर कैपिटल गुड्स. Used to create other goods, okay, fine. Assist in the production. Used for production of intermediate goods. Used for the production of intermediate goods. Used for the production of intermediate goods, okay. No value addition, finished produce. No value addition, finished produce, okay. हाँ, डेप्रिसिएशन भी होता है, ये भी सही बात है. यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, ऐसा है क्या? ये तो ड्यूरेबल की डेफिनेशन नहीं बता रही आप. यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, नहीं नहीं, ठीक है. कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन जो बाकी बच्चे बता रहे हैं एकदम सही है, ठीक है. व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको याद रखनी है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ मैन मेड प्रोसेस, राइट. सो एनी नेचुरल रिसोर्स वो सब दे कैन नॉट बी कैपिटल गुड्स, राइट. इट शुड बी रिजल्ट ऑफ मैन मेड, इसलिए एम लिखा है वहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एम, बिकॉज दे आर रिजल्ट ऑफ द मैन मेड प्रोसेस, राइट. सेकेंडली, दे आर ऑलवेज इनपुट इन अनदर प्रोडक्शन प्रोसेस. किसी ना किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में वो इनपुट, मतलब बेसिकली इनपुट तो होंगे वो, राइट. बट देन कम्स, आप बोलोगे इनपुट तो इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं. देयर देन कम्स द थर्ड फीचर, दैट इज दे आर नॉट consumed or they do not go final transformation, इसलिए मैंने x लिखा है. they do not go transformation. MIT से भी याद कर सकते हो, T का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखना they do not undergo transformation, right. so इसका एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीद ली, राइट. अगर आपने कोई भी मशीन खरीद ली तो क्या होगा? वो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स, बट इट विल नॉट गेट कंज्यूम्ड. और मशीन क्या है? इट इज अ मैन मेड प्रोडक्ट. वेरी गुड, ठीक है. ट्रैक्टर इज अ गुड एग्जाम्पल, राइट. सो सर्विसेज वाली बात कर ली हमने, ठीक है. नाउ लेट अस कम टू दिस, सर्विसेज वाली बात ध्यान रखना, ठीक है. नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर टी लीव्स, ठीक है. आर टी लीव्स इंटरमीडिएट और फाइनल गुड? अगेन विवेक सिंह सर की बुक से, टी लीव्स क्या इंटरमीडिएट होंगी, क्या फाइनल गुड? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस. इट कैन बी बोथ, राइट. इट इज नॉट बोथ, इट कैन बी बोथ, ठीक है. एंड ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन दी लास्ट ट्रांजैक्शन इन द मार्केट, राइट. नाउ, राइट, नो इट डिपेंड्स. इंटरमीडिएट फॉर अस, ओके, एंड सेलर के लिए फाइनल. नहीं, ऐसे थोड़ी होता है. नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता. इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, ठीक है. आपको पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही देखना है. इंटरमीडिएट फॉर अस मतलब जब हम खुद घर पे आके चाय पी रहे हैं, हाँ, दैट इज ट्रू, राइट. सो इसमें क्या एग्जांपल है, राइट. सो व्हेन डॉली चाय वाला इज क्रिएटिंग चाय, राइट, तो क्या होगा? ही इज क्रिएटिंग दिस चाय. यहाँ पे जब वो चाय कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? यहाँ पे जब बना रहे हो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो देन इट इज गोइंग टू बी एन इंटरमीडिएट गुड, राइट. बट व्हेन ही इज ड्रिंकिंग हिमसेल्फ, राइट, तो देन इट इज नॉट गोइंग टू बी इंटरमीडिएट गुड, इट इज गोइंग टू बी द फाइनल गुड, ठीक है. फाइनल गुड होगा, समझ में आ गया आपको? समझ, इट इज गोइंग टू बी कंज्यूमर गुड, ठीक है. कंजम्पशन होगा ना, फाइनल गुड होगा यहाँ पे, राइट. यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा बिकॉज इट इज, यहाँ पे लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जब इसने खुद चाय बनाई अपने लिए तो उसका फाइनल ट्रांजैक्शन हो गया, राइट. गॉट इट? चलो, ये भी क्लियर हो गया. ध्यान रखना, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है. इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का डिफरेंस जो है ना, इट दे कैन ट्रैप यू हियर, राइट. प्लीज रिमेंबर दिस वेरी कंसेप्चुअली. MIT जो मैंने आपको बताया, MIX, रेक्टिफाई कर लो उसको. इट इज मैन मेड, ठीक है. इट इज यूज्ड एज अ इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट डज नॉट गेट गो थ्रू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन. ये कैपिटल गुड है, राइट. और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि इंटरमीडिएट है या फिर आपका फाइनल गुड है? वो डिपेंड करेगा लास्ट ट्रांजैक्शन पे, राइट. रिमेंबर दिस, लास्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है. और MIT, ठीक है, MIT, इसको याद रखना, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग. ये हमने बात कर ली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस ट्रैक्टर यूज्ड बाय दिस डॉगेश, राइट. ये जो डॉगेश है ट्रैक्टर यूज कर रहा है एंड ही प्रोड्यूसेस क्रॉप्स, ये सब प्रोड्यूस करता है, सब कुछ. ये कंजम्पशन गुड होगा या कैपिटल गुड होगा? हाँ जी, ओके. कैपिटल गुड, कैपिटल गुड, ठीक है. व्हाट इज द रीजनिंग, व्हाट इज द रीजनिंग, व्हाट इज द रीजनिंग? इनपुट फॉर अदर, वेरी गुड. ठीक है. लेट अस लुक एट MIT. इज इट मैन मेड ट्रैक्टर? यस इट इज. इज इट बीइंग यूज्ड एज अ इनपुट फॉर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस? डेफिनेटली, राइट. एंड लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. क्या ये ट्रैक्टर का इस प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है? नो, राइट. तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है. दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ कैपिटल गुड. नाउ सपोज करो ये ट्रैक्टर, ठीक है, मैं यूज करता हूँ, डॉगेश जी खरीदते हैं, और डॉगेश जी जो है अपना शादी में जाते हैं और विदाई के लिए ट्रैक्टर यूज करते हैं. नाउ विल दैट बी अ कंजम्पशन गुड या फिर कैपिटल गुड? ही डज नॉट यूज इट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो फिर कंजम्पशन गुड हो या कैपिटल गुड होगा? वेरी गुड, ठीक है. दैट मीन्स कंजम्पशन या कैपिटल है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? पर्पस, राइट. पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड, राइट. नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, और इससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है. अगर आप बात करें, शादी का सीजन चल रहा है, राइट, और लहंगा, लेट अस टॉक अबाउट, आप बोलोगे कि लहंगा कहाँ से ले आए, राइट. लेट्स टॉक अबाउट लहंगा. इज इट अ कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड? आप लोग बोलोगे कंजम्पशन गुड, राइट. बट लेट मी शो यू द कैपिटल गुड साइड ऑफ इट, राइट. इफ द दुल्हन वियर्स इट एंड डांसेस लाइक दिस, इट इज गोइंग टू बी अ क्या? इट इज गोइंग टू बी आपका कंज्यूमर गुड, राइट. बट इट इज गोइंग टू बी अ कैपिटल गुड इफ शी डिसाइड्स टू रेंट इट फर्दर. एक बार उसने पहन लिया और आगे जाके क्या करते हैं वो? दे रेंट इट टू अ रेंटिंग प्लेटफॉर्म एंड कंटिन्यूअसली फिर क्या होगी? इससे इनकम जनरेट होगी. देन इट इज अ कैपिटल गुड.
बिकॉज वहां पे लास्ट ट्रांजेक्शन चेंज हो गया फिर, ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन भी चेंज हो गया आपका, और आपका पर्पस ही इट इज बीइंग यूज्ड फर्दर टू जनरेट इनकम, राइट। तो दैट इज द थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। यहाँ पे फाइनल और ये गलत हो गया, यहाँ पे कंजम्पशन गुड होगा या कैपिटल गुड, ठीक है, हेडिंग गलत है यहाँ पे। कंजम्पशन गुड होगा कैपिटल गुड, तो कंजम्पशन गुड होगा जब शी इज यूजिंग इट वन टाइम, राइट, बट कैपिटल गुड होगा व्हेन शी रेंट्स इट फर्दर, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस, ध्यान रखना इस चीज को, इसमें कंफ्यूजन होता है, हो जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए चीज क्रिएट करी है, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस इट, ठीक है, एंड प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन एक बार, कंजम्पशन और कैपिटल वाला आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा फिर आपको, ठीक है। सो डू इट, एंड आगे आंसर्स दे रखे हैं तो यू कैन प्रैक्टिस इट, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस दिस लेटर, राइट, अभी नहीं करेंगे प्रैक्टिस, लेटर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। ओके, चलो, आई होप कंजम्पशन गुड और जो है कैपिटल गुड समझ में आया आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है, डन, ठीक है। कोई डाउट हो ना तो बाद में पूछना, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, सारा आराम से डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी डाउट होगा आई विल क्लियर इट, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गिव मी द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, बताइए, इकोनॉमिक टर्म्स में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अच्छा, कैन आई से दैट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैन आई से दैट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, ओके, ब्रिंग्स फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट। अच्छा कनिका, आप बोल रहे हो इट ब्रिंग्स फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट, इस पे एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे बाद में, ठीक है। यू आर सेइंग नो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम नहीं बोल सकते इन्वेस्टमेंट, तो फिर किसको बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स दैट विल क्रिएट फर्दर गुड्स, वो तो आपने डेफिनेशन दे दी ना कैपिटल गुड्स की, बट विल इट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स दैट विल क्रिएट फर्दर गुड्स, दैट कैन ऑल्सो बी इंटरमीडिएट गुड्स, राइट, यू हैव टू मेंशन कैपिटल गुड्स, ओके। कैन आई से ग्रॉस, हाँ सुना आपने, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को बोल सकते हैं, आप बोल रहे हो नहीं, इन्वेंट्री, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अच्छा चलो ठीक है, ग्रेट, समझ में आ गया आपको। तो इट इज़ द फाइनल आउटपुट, जो भी आपका फाइनल प्रोडक्शन हुआ है उसका वो पार्ट जहाँ पे कैपिटल गुड्स है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स पे प्लीज रिमेंबर दिस, कैपिटल गुड्स क्या थे, कैपिटल गुड्स MIT, याद रखना ये बात, MIT, प्लीज रिमेंबर दैट, राइट। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछेंगे। GCF इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। फोरम SFG वगैरह अगर आप दे रहे हो 100% बात है, वो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन पूछ लेंगे क्या होता है, या फिर ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो पूछ लेंगे, राइट। दे आर गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन, अगर आप SFG वगैरह देखते हो या बाजीराम कैंप भी दोगे, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, राइट। दैट इज वाई आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक नाउ। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, आप लोगों ने मुझे बताया, समवन सेड दैट, सोनाली सेड दैट GFCF इन्वेंट्री अनसोल्ड और वैल्यूएबल्स। अच्छा एक बात बताऊं मुझे, व्हाई इज इन्वेंट्री अनसोल्ड कैपिटल गुड, रट्टा मार लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, रट्टे मारने जरूरी है इस एग्जाम में, डू नॉट थिंक दिस इज जस्ट कंसेप्चुअल एग्जाम, ठीक है, रट्टे मारने भी जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा। फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ बेनिफिट, अच्छा ओके, वेरी गुड, फ्यूचर वेल्थ देगा, ओके, ठीक है। अच्छा टेल मी, कैन इफ आई बाय अ स्टॉक टुडे, राइट, वो भी बाद में फ्यूचर बेनिफिट देगा, कैन इट बी कॉल्ड कैपिटल, राइट, व्हाई नॉट, एक्सपेंडिचर हो चुका है, ये क्या, ये समझा नहीं मैं, इट्स जस्ट एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप, ओके। युक्ता इस पे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, इट्स जस्ट एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप, नो नो, अच्छा वो जस्ट कह रहे हैं कि क्योंकि सेकेंडरी मार्केट पे, व्हाट इफ सम कंपनी इशूज न्यू शेयर्स, ऑल द वे क्वेश्चन पहले ही आ रहा है, बट आई वांट टू डिस्कस दिस, व्हाट इफ अ कंपनी इशूज न्यू शेयर्स, तब तो चेंज ऑफ ओनरशिप नहीं है, न्यू कैपिटल इज बीइंग क्रिएटेड, टेल मी, बताओ, व्हाट इफ इट इज एट द प्राइमरी मार्केट, दीपक इज सेइंग डज नॉट क्रिएट एनीथिंग ऑन ग्राउंड, ओके, नो फिजिकल, है ना, समझ रहे हो आप, तो दैट मीन्स खाली ये डेफिनेशन नहीं बोल सकते आपकी, इट क्रिएट्स फ्यूचर बेनिफिट्स, राइट। जब हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल की बात करते हैं दोस्तों, तो इट इज कैपिटल गुड्स, राइट, इट हैज़ टू बी टेंजिबल, ठीक है, इट हैज़ टू बी टेंजिबल, खाली आप उसकी बात नहीं कर सकते, कैपिटल गुड्स इट शुड क्रिएट समथिंग ऑन द ग्राउंड, एंड दैट इज वाई वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इट इज GFCF, ये तो आपको पता ही है, चेंज इन स्टॉक्स एंड इन्वेंट्री, राइट, एंड चेंजेस इन वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर, ये सब, ठीक है, ये सब आपने बता दी। नो नो ओम, दैट इज नॉट द रीजन, द रीजन इज सिंपल थिंग, ठीक है, यस वेरी गुड, द रीजन इज सिंपल, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनेंस के जो भी चीजें होती हैं दे आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग टेंजिबल ऑन द ग्राउंड, राइट। और हमने क्या बात करी थी, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देखो दोस्तों, प्लीज लुक एट द इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, प्लीज लुक एट व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल, पोर्शन ऑफ फाइनल आउटपुट,
ठीक है, पोर्शन ऑफ फाइनल आउटपुट दैट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, कैपिटल गुड्स, ये ध्यान रखना। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हाई डू वी इंक्लूड वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम। अभी तो मैंने आपसे बोला था कि नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आएंगे, तो ये क्यों आ रहे हैं इसमें इंक्लूडेड, व्हाई आर दीज इंक्लूडेड? जिसने ये आंसर जानना बड़ा डिफिकल्ट है, बट व्हाई आर गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम जेम्स ये सब इंक्लूडेड, बताइए इसमें कौन सा कैपिटल गुड है, व्हाई इज दिस इंक्लूडेड? आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस सो दैट यू रिमेंबर दिस, राइट? नो अदर पर्पस इज देयर, टेल मी दिस। लिमिटेड इन सप्लाई, नो दैट्स नॉट अ डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड, बिल्कुल भी नहीं। चेंज इन वैल्यूएबल्स है नॉट एब्सोल्यूट, ओके, तो उससे मतलब चेंज इन वैल्यूएबल से बिल्कुल सही बात है, बट स्टिल हाउ इज इट? अभी मैंने बोला ना आपको कि नेचुरल रिसोर्सेज तो आते नहीं, आप अभी ने अपने कैपिटल गुड्स की बात करी थी, राइट? ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट, यानी ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स होने चाहिए। हाउ इज दिस कैपिटल गुड? गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम जेम स्टोन्स, इसमें MIT, इज इट अ रिजल्ट ऑफ मैन मेड प्रोसेस? बताओ, इट इज नॉट। गोल्ड कोई मैन मेड होता है? यूज टू क्रिएट अदर गुड्स लाइक सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो गोल्ड वगैरह इंक्लूडेड है ना, दैट इज नॉट ओर, ठीक है, दैट इज रिफाइंड गोल्ड और ये सब, ठीक है, जो आगे जाके प्रोसेस करके आगे निकाला गया, दैट इज वाई इट इज मैन मेड, पहली चीज। दूसरी चीज, लिख लो इस बात को और याद रखना, एनीथिंग दैट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, उसको इकोनॉमिक्स में एनीथिंग दैट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली उसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, ठीक है, कि ये फ्यूचर वैल्यू क्रिएट करेगा, जो आप लोगों ने बात करी। तो एनीथिंग दैट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली ऑटोमेटिकली बिकम्स आपका कैपिटल गुड, राइट? क्योंकि वो कंजम्पशन गुड वाली कैटेगरी में नहीं आएगा और इंटरमीडिएट में भी नहीं आएगा। तो मतलब जहां पे भी आप स्टोर ऑफ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू स्टोर वैल्यू, राइट, दैट इज गोइंग टू बी अ कैपिटल गुड। और यहाँ पे टेंजिबल भी है, आपको पता है, और यहाँ पे ग्राउंड पे भी चीजें चेंज होती है, राइट? दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर। इसके पीछे लॉजिक बस इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आप लोगों को याद रहे, कंफ्यूजन ना रहे, राइट? इसलिए ही लॉजिक दिया है, दैट्स दी ओनली रीजन, राइट? इन्वेस्टमेंट हो गया, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसको थोड़ा देख लो, कैसे इसको ग्रॉस कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को देख सकते हो, इसको थोड़ा थोड़ा वो देख लेना, एग्जांपल्स के लिए देखना और किसी चीज़ के लिए मत देखना, ठीक है? बस एग्जांपल्स देखते हुए चलना, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू सी। बाद में बात करेंगे ऑल दो इसकी, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स GFCF, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? हु कैन टेल मी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में दोस्तों क्या क्या आता है, बताइए? वेरी गुड, मशीनरी, वेरी गुड, फिजिकल एसेट्स आर इन, ओके, वेरी गुड, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ओके। इन्वेंट्री तो अभी GCF में आ गया ना, चेंज इन इन्वेंट्री, दैट मीन्स वो GFCF में नहीं है, बट हाँ इक्विपमेंट विल बी देयर, इन्वेंट्री पर से नहीं है, चेंज इन इन्वेंट्री होता है, ध्यान रखना। इन्वेंट्री तो वो कंजम्पशन गुड में चला जाएगा, नहीं तो चेंज इन इन्वेंट्री, बिकॉज वो जो है वो बिका नहीं है, वो बिका नहीं है तो उसको मान लेते हैं इमीडिएटली कंज्यूम नहीं हुआ, तो फिर वो क्या है, कैपिटल गुड है, वो आगे के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। न्यू कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। मशीनरी यस, इक्विपमेंट यस, न्यू कंस्ट्रक्शन यस, सारे आपने बता दिए, ठीक है। नाउ टेल मी, विल कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बी अ पार्ट ऑफ GFCF? कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, वेरी गुड गाइस, बताओ, गुड, ठीक है। वाई, टेल मी वाई, अब रीजन दे दो जल्दी से, वाई? हाँ जी, कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्यों होंगे पार्ट? क्योंकि अच्छा, क्योंकि एक चौथा कंपोनेंट भी है, या बिकॉज एक चौथा कंपोनेंट भी है, दैट इज IPR, ठीक है। सो GFCF ऑल्सो इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, GFCF। अब आप बोलोगे कि ये तो इंटेंजिबल, ठीक है, R&D जो है इंटेंजिबल है, बट इट डज चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ग्राउंड, ठीक है, इट डज चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ग्राउंड। पहली चीज मैन मेड है, इट विल बी यूज्ड एज इनपुट इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस, और तीसरी चीज, इट डज नॉट गेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। IPR एक ऐसी चीज है जो यूज होगी ही होगी प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो MIT के तीनों प्रिंसिपल्स यूटिलाइज होते हैं, इट इज नॉट अ सर्विस, ठीक है, इट इज नॉट अ सर्विस, ध्यान रखना, IPR इज नॉट अ सर्विस। अगर इसमें कंफ्यूजन है, रट्टा मारो जिंदाबाद, कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ती हैं, आगे भी बताऊंगा मैं आपको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है रट्टा मारो, बट ध्यान से समझो, इट इज नॉट अ सर्विस, IPR कोई सर्विस नहीं होती है, ठीक है। IPR इज इट्स डेफिनेटली इट इज इंटेंजिबल, ठीक है, बट इट इज नॉट अ सर्विस, राइट, इट इज नॉट अ सर्विस। तीनों फुलफिल करता है वो प्रिंसिपल्स, ठीक है, MIT तीनों की तीनों चीजें फुलफिल करता है, ठीक है। एंड इवन इफ सपोज करो, कभी कभी क्या होता है, सिक्योरिटीज को इंटेंजिबल मान लिया जाता है, तो उनका जो पेपर होता है उसको टेंजिबल मान लिया जाता है। सपोज करो आज मैंने ट्रेडमार्क करवा लिया किसी चीज का, या सपोज करो कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्स जो मोंसांटो ने वहां पे आपके लिए सीड बनाया है, ठीक है, क्या आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे? विल यू नॉट इंक्लूड इट इन द डेफिनेशन ऑफ GFCF? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इंक्लूड इट, राइट? सो रिमेंबर दिस थिंग्स, IPR वाला रट्टा मारना याद रखना, भूलना मत इस चीज को, दैट इट इज गोइंग टू कम इन द डेफिनेशन ऑफ GFCF, ठीक है। चलो, या ठीक है। नाउ
अरेंज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन GFCF। इलेक्ट्रिसिटी है बाय द वे। कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में? इंडिया के लिए बता रहा हूँ, इंडिया में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में व्हाट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट? अरेंज इट फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, जो भी आपका मन करे, लोअर टू हायर कर दो, ठीक है? या सबसे ज़्यादा किसका है पहले ये बता दो, तुक्का मारो चलो, सबसे ज़्यादा किसका होगा? प्रिंस ने बोला माइनिंग, ओम ने बोला मैन्युफैक्चरिंग, हाँ जी, और कंस्ट्रक्शन, नहीं कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सारी बोल दी, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द लॉजिक, राइट? कैन यू गिव मी सम लॉजिक, व्हाई हैव यू चोजन दिस? ठीक है, क्योंकि लॉजिकल गेसिंग भी जरूरी है, राइट? आप अब मैं लेट मी रीफ्रेज दिस। GFCF क्या है? फिक्स कैपिटल, राइट? फिक्स कैपिटल है, ध्यान से सुनना, फिक्स कैपिटल इमेजिन कर लो। फिक्स कैपिटल ऊपर क्या लिखा है? मशीनरी, इक्विपमेंट, न्यू कंस्ट्रक्शन, IPR। ऊपर देख लो ध्यान से, मशीनरी, इक्विपमेंट। ये आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस करता होगा? मशीनरी, इक्विपमेंट, न्यू कंस्ट्रक्शन, IPR। ओके ओके गाइस, सो द आंसर इज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? सो द फर्स्ट इज आपका मैन्युफैक्चरिंग, द सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड द थर्ड इज कंस्ट्रक्शन, एंड देन कम्स माइनिंग, राइट? ठीक है, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव सम लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है, बट थोड़ी सी फीलिंग आ सकती है आपकी, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही सबसे ज़्यादा करेगा, सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर है इनके मुकाबले, तो बहुत बड़ा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, राइट? इलेक्ट्रिसिटी और इन सब के मुकाबले इट इज़ अ फार बिगर सेक्टर। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वैसे कि ओवरऑल वैल्यू के टर्म्स में बात नहीं कर रहा, बट फिक्स कैपिटल कौन सबसे ज़्यादा बनाएगा, राइट? उस टर्म्स में अगर आप सोच सकते हो तो मे बी यू कैन हैव फीलिंग कि मैन्युफैक्चरिंग हो। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दिस, कि आपको आना ही चाहिए, बट अब याद कर लेना, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है? चलो लेट्स टॉक अबाउट आगे का। अब इस चीज़ पर आते हैं, यही जो मैं आपको बताया था, ट्रांसफर्स ऑफ न्यू शेयर्स आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसका आंसर आप ऑलरेडी दे सको, एक और बार दे दो, ठीक है? ट्रांसफर्स ऑफ न्यू शेयर्स आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। पता है ना आपको रीजन इसका, ठीक है? वही सेम बात है, ठीक है? इट इज फॉल्स। नाउ यही सेम क्वेश्चन जो मैंने ओजस से पूछा था, न्यूली इशूड शेयर्स, ठीक है, दैट न्यूली इशूड शेयर्स आर इंक्लूडेड इन GFCF, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? ठीक है, बिकॉज फाइनेंशियल एसेट्स इन टोटो आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है? पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर इज एक्सक्लूडेड, रट्टा मारना, याद रखना इस चीज को, ठीक है? कंसेप्चुअली फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल गुड्स, राइट? इट वुड बी इन्वेस्टमेंट जब वो पैसा, जैसा कि आप में से बोला था 1% सेट दिस, कि दैट आपको जो है वो जो पैसा अगर उन्होंने नया रेज किया है, इफ दैट मनी इज यूज्ड ऑन ग्राउंड टू क्रिएट मशीन्स, इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन, राइट, तो दैट वुड बी ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तब होगा वो। बाय इट इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज एनीथिंग ऑन ग्राउंड, कोई भी कैपिटल गुड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? नाउ व्हाट अबाउट लैंड दोस्तों? लैंड बताइए, इज लैंड अ कैपिटल गुड? राइट, बताओ, इज लैंड अ कैपिटल गुड? वेरी गुड, इट इज़ नॉट मैन मेड, ठीक है? इट इज़ नॉट मैन मेड, यही हो गया आपका यहाँ पे खत्म, ठीक है? तो इट इज़ नॉट मैन मेड, इसलिए लैंड विल नॉट बी देयर। नेचुरल रिसोर्सेज, सेम आंसर, ठीक है? तो लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन, राइट? लेट्स मूव अहेड, ठीक है? चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। यही जो मैं बता रहा था आपको, आई होप जल्दी हो ही जाएगा हमारा काम खत्म। लेट्स सी, ड्यूरिंग द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो भी हम देख के आए हैं, हमारे पीके भाई साहब घूम के आए पूरा अमेरिका, एंड इंडिया रिमेन्ड रिलेटिवली इम्यून टू द क्राइसिस, राइट? वाई डू थिंक सो? आपके हिसाब से क्या रीजन है? फिर मैं आपको एक रीजन बताऊंगा जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं। वाई डू थिंक इंडिया रिमेन रिलेटिवली इम्यून? हाँ जी, रिसोर्सेज हैं, अच्छा वो रिसोर्स दूसरा बोला, ठीक है? वाई डू थिंक इंडिया रिमेन रिलेटिवली इम्यून टू द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस? रिलेटिवली इम्यून, आई एम नॉट सेइंग दैट इट वाज नॉट, इट वाज कंप्लीटली इम्यून। वेरी गुड, वेरी गुड ओजस, वेरी गुड आंसर। नो ओके, गुड गुड, दैट्स ऑल्सो गुड। दीक्षा ये भी सही बात बोल रहे हैं, अदनान भी बहुत सही बात बोल रहे हैं, ये भी सही बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है ना इंडिया, चलो इस क्वेश्चन पे भी बाद में आते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात बोली है, बट ये आगे बात करेंगे। यस, सेविंग्स, ठीक है? सेविंग्स वाज वन ऑफ द रीजंस, राइट? अब आप मुझे बताइए, सेविंग्स और ग्रोथ का क्या रिलेशनशिप होता है? सेविंग्स और ग्रोथ का क्या रिलेशनशिप होता है? व्हेन यू से सेविंग्स, तो सेविंग्स का ग्रोथ से क्या लेने देना, बताइए? मोर मनी टू लेंड, ओके ग्रेट, एंड देन व्हाट विल हैपन? जस्ट मोर मनी टू लेंड, देन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द हैरेट डमार मॉडल? बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट प्लीज रिमेंबर दैट इक्वेशन, जहां पे अगर आपने विवेक सिंह करी है तो वहां से, ठीक है? अदरवाइज कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टी, ठीक है? C प्लस S प्लस टी,
उसको चिग्जम के इक्वल करो और फिर गवर्नमेंट सेक्टर हटाओ, कंजम्पशन कंजम्पशन कट जाएगा एंड यू विल डिराइव दैट इक्वेशन दैट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये तो आप इक्वेशन के लेवल पे कर लेना, ठीक है, इक्वेशन के लेवल पे कर लेना। जिनको नहीं समझ में आया टॉक टू मी लेटर, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू, राइट। बट जिनको नहीं समझ में आया अभी के लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन समझ लो, ठीक है, दैट दिस इज द थिंग, ठीक है, दैट इज द हैरेड-डोमार मॉडल, राइट। जब आपकी इंक्रीज सेविंग्स होती हैं, राइट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स, एस इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है, रिमेंबर दिस, एस इज इक्वल टू आई होता है। दिस लीड्स टू हायर कैपिटल स्टॉक एंड ऑब्वियसली हायर कैपिटल स्टॉक है तो आपका क्या होगा, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, राइट। बट देन कम्स कीन्स, ठीक है, कीन्स भाई साहब कम्स विद हिज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है, ही कम्स विद हिज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है? अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बोलता है, राइट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट गोज ऑन टू से दैट सेविंग्स अगर आप ज़्यादा करोगे, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल कर जाएगी। रिमेंबर दिस, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट गोज ऑन टू से अगर आपने सेविंग्स करी तो लेस ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ठीक है, ये क्यों होता है? बिकॉज ही सेज दैट पीपल डिसाइड, व्हेन पीपल डिसाइड टू सेव मोर तो कंजम्पशन स्पेंडिंग कम हो जाएगी। जब कंजम्पशन स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी गुड्स की, राइट। अगर आप लोगों ने अभी डिसाइड कर लिया कि सेव करेंगे, ठीक है, तो तुम अमेजॉन यूज नहीं करोगे। जब अमेजॉन यूज नहीं करोगे तो एमएसएमईज जितनी सारी हैं उन पर डिमांड नहीं आएगी। जब उन पर डिमांड नहीं आएगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट कम होगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो आपकी वेजेस कम होंगी, ठीक है, आपके वेजेस कम होती जाएंगी एंड देन ऑब्वियसली ओवरऑल सेविंग्स भी आपकी कम होती जाएंगी बिकॉज आपकी इनकम कम हो गई। दिस इज द प्रॉब्लम, ये है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट कीन्स ने बोला। नाउ द क्वेश्चन इज फिर, ठीक है, करें तो करें क्या, राइट। सो द क्वेश्चन इज सिंपल सी चीज दैट यहाँ पे इकोनॉमिक्स में नथिंग इज द मैसेज दैट आई वांट टू सेंड यू इज दैट इकोनॉमिक्स में नथिंग इज सर्टेन, ठीक है, इकोनॉमिक्स में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। इट इज अगेन बिहेवियरल साइंस, ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना। और ये चीज, ये मैंने क्यों बोला यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली, व्हाई आई हैव सेड दिस इज दैट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दीज मॉक टेस्ट प्रिपेयर दे फॉरगेट इट, ठीक है। वही बहुत ही एमेच्योर लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बनाते हैं। इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस आर पर्टिकुलरली वेरी वेरी बैडली डिजाइंड, राइट, एंड इन दैट दे डू नॉट अज्यूम दैट एवरीथिंग हैज टू बी हेल्ड कांस्टेंट। मैंने इतने घटिया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं कहीं कहीं टेस्ट सीरीज में कि वो बोल देते हैं इससे ये इंक्रीज होगा, इससे ये इंक्रीज होगा, जबकि इकोनॉमिक्स में अगर आप कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हो यू हैव टू अज्यूम दैट एक चीज जो बाकी सारे वेरिएबल्स हैं, जब आप दो वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन देख रहे हो यू हैव टू अज्यूम बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, राइट। बट दीज पीपल कंप्लीटली चेंज इट एंड ऐसे चीजें ये इन्फ्लेशन के क्वेश्चन बहुत करते हैं, राइट। तो माई मैसेज टू यू इज दिस दैट डू नॉट टेक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आपके मॉक टेस्ट में आएंगे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही इरिटेटिंग होंगे एंड दे आर नॉट द अथॉरिटी ऑन इकोनॉमिक्स, राइट। यू हैव, जब भी आप कोई क्वेश्चन करो अज्यूम करके चलना कि जो उसमें वेरिएबल दे रखे हैं, क्वेश्चन में वेरिएबल दे रखे हैं वो ही चेंज हो रहे हैं, उसके अलावा और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अपनी तरफ से कुछ चेंज मत करना कि ये होगा तो ये हो जाएगा, राइट। डू नॉट डू दैट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आगे बात करूंगा, इसकी भी मैं आपको बताता हूँ हाउ वी कैन अज्यूम दैट, ठीक है। इसका भी आपको आगे एक एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। उसके पहले मैं आपको ये वाली बात बोल रहा था दैट ये जो है ना आपको, दिस इज द हैरेड-डोमार मॉडल। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी है उनको तो पता होगा, बट दिस इज बेसिकली बहुत ही सिंपल टर्म्स में हैरेड-डोमार मॉडल है। हाउ इट इज प्रूवन दैट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। इन्वेस्टमेंट कैसे सेविंग के इक्वल होती है ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से सेविंग्स ने बचाया, ठीक है, बट व्हाट इफ द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इज ट्रू? That is the uncertainty of life in itself. The world is complex. We do not know. ठीक है, लोग assumptions ही कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज assumption पे चल रही है. So if someone goes on to say that they are the authority and they can predict everything in economics, that is not going to be true. And again, I am reiterating on this because you guys are going to become officers, right? And then the main thing that you guys are going to do when you reach the higher level is going to be developmental economics. At the ground level, आप developmental economics ground पे करोगे and then eventually policy making करोगे ऊपर level पे. इफ यू थिंक कि एक चीज सही है और मुझे पता है वो, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, राइट। व्हाट इज अ बेटर अप्रोच? जस्ट थोड़ा डिविएट हो रहा हूं, दैट इज द बारबेल अप्रोच, ठीक है। जो बारबेल अप्रोच की व्हाट यू डू, यू अप्लाई अ मॉडल, ठीक है, फिर आप क्या करो, फीडबैक लो मार्केट से, देखो हाउ इट इज फंक्शनिंग एंड देन यू चेंज अकॉर्डिंगली। डू नॉट थिंक दैट इकोनॉमिक्स या फिर ह्यूमंस इन जनरल एक मशीन मॉडल की तरह, फिजिक्स की तरह वर्क करते हैं। दैट इज नॉट हाउ द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन वर्ल्ड वर्क्स, राइट। थिंग्स आर लॉट वेरिएबल, समथिंग दैट माइट वर्क इन अमेरिका माइट नॉट वर्क इन इंडिया, राइट। दिस थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। फॉलिबिलिटी, आप गलत हो सकते हो और कुछ भी एक यूनिवर्सल लॉ इकोनॉमिक्स में तो नहीं होता है, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू, राइट। कमिंग बैक, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस हैरेड-डोमार मॉडल, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू जीडीपी, मेजर पार्ट हो गया है हमारा, ठीक है। डिफिकल्ट पार्ट है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर इन्वेस्टमेंट की बातें। वहाँ पे जो मैंने छोटी छोटी बातें बोली हैं बच्चों ने बहुत जल्दी से अच्छे से आंसर दे दिए हैं। संजीव सानियल, वेरी गुड दीपक, तुमने भी संजीव सानियल को सुना। इट इज नॉट फिजिक्स, इट इज नॉट अ बिग मॉडल, बट प्लीज रिमेंबर बच्चों ने बहुत आसानी से आंसर दे दिया। जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, प्लीज गो बैक टू व्हाट इज अ कैपिटल गुड, प्लीज गो बैक टू व्हाट इज अ इंटरमीडिएट गुड, प्लीज गो बैक एंड सी व्हाट इज अ फाइनल गुड, प्लीज रेक्टिफाई व्हाट इज जीएफसीएफ, प्लीज रेक्टिफाई व्हाट इज डीसीएफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब ये फाइनल एग्जाम में आएगा ना, इसी में ही फॉल्टर करोगे तुम। दैट इज वाई आई हैव टेकन सो मेनी स्लाइड्स, सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा तेज चल रहा हूँ मैं, मुझे पता है, बिकॉज वी हैव लेसर टाइम, राइट।
बच्चों को सोना भी पड़ता है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा कम टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, राइट। नाउ लेट अस कम टू जीडीपी, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन सिंपल सा, हु कैलकुलेट्स जीडीपी एंड बाय विच मेथड? सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, कनिका पुरानी बुक है तुम्हारी, कनिका की बुक पुरानी है। वेरी गुड, ठीक है। विच मेथड्स गाइस? वैल्यू एडेड, वेरी गुड। एक्सपेंडिचर, ओके, तो द आंसर इज बोथ, राइट? नो, द आंसर इज कनिका बोथ। एनएसओ कैलकुलेट जीडीपी बाय बोथ द मेथड्स, ठीक है। उसमें एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है और उसमें वैल्यू एडेड मेथड भी होता ही होता है, राइट। इसमें थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर में ना कभी सेम वैल्यू नहीं आती, बिकॉज हमारे पास जो कंजम्पशन डेटा है ना वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है, राइट। नाउ अनदर क्वेश्चन टू फॉर यू इज दिस, व्हाट ड्राइव्स द इंडियन जीडीपी? सी आई चिग्जम, ठीक है, जो टीचर्स बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं, व्हाट ड्राइव्स द इंडियन इकोनॉमी? चिग्जम, वेरी गुड, ठीक है। एंड देयर लाइज योर सेकंड आंसर फॉर द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, कि इंडियन इकोनॉमी इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय कंजम्पशन, राइट। यानी कि डोमेस्टिकली क्या होता है, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स, ठीक है। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी इतनी खुली ही नहीं है, इतनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती ही नहीं है, ठीक है, कि उससे इंडियन जीडीपी को बहुत ज़्यादा मेजर अफेक्ट हो, ठीक है। ऐसा नहीं अफेक्ट नहीं हुआ, बट इट इज प्राइमरीली अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, राइट। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी जो यहीं के कंज्यूमर्स पे डिपेंड करती है, एंड दैट इज वाई यू गाइस सी दैट जोमेटो, स्विगी, ये सब दे आर थ्राइविंग, राइट, बिकॉज वी आर अ कंजम्पशन इकोनॉमी, राइट। दिस इज द लेटेस्ट डेटा जो आज की डेट में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कंजम्पशन इज 61.4% ऑफ द इकोनॉमी, राइट। बट देर इज ऑल्सो वन कैविएट, राइट, दैट बिना एक्सटर्नल सेक्टर को बढ़ाए आज तक कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हुआ है। देर इज नो मॉडल इन द वर्ल्ड जो बिना एक्सपोर्ट्स के एक डेवलप्ड कंट्री बन गया है। स्टिल कंजम्पशन इज 61.4%। अगर आप चाइना को देखोगे, टोटली इन्वर्टेड है, उसके भी हार्म्स हैं, राइट, उसके भी हार्म्स होते हैं। बट हाउ डू वी बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी? बाय दिस, सिंस वी आर अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। ये चीज़ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है आपकी, ठीक है। आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, समझो, इंटरव्यू के लिए समझो दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, राइट। वी नीड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वी नीड टू ग्रो आर एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है। जब तक वो नहीं ग्रो करेगा, वी आर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, राइट, ठीक है। चलो, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। अब आप देख लो, नेट एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट इज -4%, ठीक है। तो हमारे ऑब्वियसली इम्पोर्ट्स आर फार 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 मोर देन आर एक्सपोर्ट्स आर, ठीक है। चलो, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। या सो दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम दी बुक, ठीक है, विवेक सिंह सर की बुक जो है, वहाँ से पूरा डायग्राम है। आई वुड रिकमेंड इसको मुंह जुबानी रट्टा मार लो, इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चन कल भी पक्का आएंगे, आपके जो कल टेस्ट होगा पक्का उसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आगे भी जब भी आप क्वेश्चन करते रहोगे सेक्शनल्स में, यहाँ से क्वेश्चन ना आए, इट इज़ अ वेरी वेरी माइन्यूट पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि सेक्शनल्स में यहाँ से क्वेश्चन आए। हाँ, एफएलटी में हो सकता है ना आए। एंड नाउ सिंस वी आर सीइंग दैट यूपीएससी इज मूविंग टुवर्ड्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछ रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको यहीं पे ही उलझाया जाए, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, एमसीक्यू को टफ करने, जो टफ एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। एंड दिस चैप्टर, ये जो पर्टिकुलरली पहले के 4 चैप्टर्स हैं इकोनॉमी के, दे आर डिजाइंड इन अ वे जो कंफ्यूजिंग है। अप होगा, डाउन होगा, कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट है, फाइनल गुड है, कंज्यूमर गुड है, कुछ फाइनल है, इंटरमीडिएट है, कैपिटल है या कंज्यूमर है, नहीं समझ में आता, ठीक है। देखो, मैं ही अभी कंफ्यूज हो गया आई थिंक इसमें, राइट। तो दिस इज अ एरिया जो आपको वीक नहीं छोड़ना है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर रिवाइजिंग दिस इन द लास्ट, ठीक है। दैट मीन्स यू नीड टू इंश्योर दैट ये क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि मई में जब आप पेपर देने जा रहे हो तब आपको ये चीज़ें याद है, राइट। उसके लिए क्या करोगे, जो भी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं उनको लिख लोगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स या अपने लिस्टिकल्स में ऐड कर लोगे, राइट। मेक श्योर दैट अगर आप इस टेबल में कंफ्यूज होते हो तो लास्ट में जो आपके लिस्टिकल्स है, प्लीज ऐड दिस, ठीक है। आज ही क्लास में जहाँ जहाँ भी आपको कंफ्यूजन हुआ है, ऐड दैट टू योर लिस्टिकल, ठीक है, कि ये मुझे लास्ट में रिवाइज करना ही पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा, राइट। दैट इज द सोल्यूशन, ठीक है। छोड़ देना इज नॉट अ सोल्यूशन, लास्ट में रिवाइज करना ही सोल्यूशन। ऐड दैट टू योर लिस्ट, जहाँ पे भी आज आप कंफ्यूज हो गए और आगे भी कंफ्यूज हो गए ही होगे वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है ही है, राइट। चलो, नाउ टेल मी व्हाट इज नेशनल इनकम, इज इट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट? ट्रू और फॉल्स? मेरी बुक पुरानी है क्या? अभी लेटेस्ट मंगवाइए भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो, लेटेस्ट एडिशन है। रिशिता इज सिंग ट्रू, इज इट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट? ओम इज सिंग ट्रू, अबीर इज सिंग ट्रू, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ के आए सारे लोग, है ना? गुड। गलत है बट ये, दैट इज वाई आई आज दिस, ठीक है। सो जो एनसीईआरटी है ना वो गलत बोलती है, एंड दैट इज वाई यू नीड टू अपडेट इट, ठीक है।
इंडिया हैज़, यस वेरी गुड, ठीक है। सो इंडिया हैज़ चेंज्ड व्हाट इज मेंट बाय नेशनल इनकम, ठीक है। अपन आज की डेट में जो है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। इट इज़ एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनसीईआरटी आज भी वही पुरानी बात बोल रही है, एंड ये लास्ट प्री हैंड होल्डिंग में भी तुमने ऋषिता गलत किया था, ठीक है। फिर से गलत कर दिया एक साल बाद भी, क्या इंप्रूवमेंट हुई, ठीक है। वी हैड चेंज दिस इन 2015, राइट। सो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ एनएनपी एट, थी नहीं तुम एक्टिव रिकॉल में नहीं आई थी क्या? अच्छा कोई बात नहीं। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, बट एवरी ईयर पीपल डू दिस क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। एनएनपी एट, अच्छा तुम पॉलिटी में आई होंगी, इकोनॉमी में नहीं आई। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, बट एनीवे वी हैव डन दिस रॉन्ग, तो गलत है ये। एनएनपी एट मार्केट प्राइस ध्यान रखना, 2015 में वी हैव चेंज दिस, बुक्स हैव नॉट इवॉल्व टू दिस, आई डोंट नो व्हाई, बट रिमेंबर दिस, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस, कि आप ये क्वेश्चन कल गलत अगर आएगा तो कल ये गलत करना ही करना होता, अनलेस आई मेड दिस इंटरवेंशन, ठीक है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज द नेशनल इनकम, एंड रिमेंबर एनएनपी, ठीक है। नेट नेशनल इनकम और नेशनल इनकम बोथ आर सेम थिंग्स। तो ये मत करना कि आपने तो नेशनल इनकम बताया था, नेट नेशनल इनकम नहीं बताया था। नेट नेशनल इनकम इज ऑल्सो द सेम थिंग, राइट, ठीक है। थैंक यू गाइज, एक तो 31 लोग आए हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, ठीक है। ऑलमोस्ट फुल अटेंडेंस है। नाउ व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इनकम देन? चलिए अब बताओ व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इनकम। लिखा या आंसर भी लिखा है आपके सामने, और आपके सामने वैसे आंसर लिखा था पहले भी, ठीक है। चलो ठीक है, राइट, वेरी गुड। प्लस डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, है ना। विच इज अगर हम ऐड कर देंगे विच इज डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, क्या आ जाता है? इट इज, व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे क्या बोलते हैं? नो नो, नॉट नॉट जीडीपी, जीएनपी, हाँ, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, वेरी गुड। जीएनपी, गुड 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 गाइस, ठीक है, वेरी गुड, पढ़ के आयो, ठीक है। चलो नाउ टेल मी व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? पक्का गलत कर दोगे कि ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा आएगा, दैट इज आई आज दिस क्वेश्चन, ठीक है। नहीं नहीं, फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, नहीं नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला, ये सोनाली, ये तो कोई कौन सा फॉर्मूला है? व्हाट इज, ये कौन सा फॉर्मूला दिया है आपने? विच फॉर्मूला इज दिस? हाँ वेरी गुड, एवरीवन इज आई थिंक गिवन द राइट आंसर, ठीक है। बस बेसिकली आपको याद रखना नीचे रियल आएगा, ठीक है। ऊपर नॉमिनल नीचे रियल, याद रखना, नीचे रियल ऊपर नॉमिनल, ठीक है। बाकी जो इसके बारे में चीज़ें पढ़नी है वो इंडाइसिस में पढ़ेंगे। इंडाइसिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टुमारोज सिलेबस, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो डन, ओके। वन थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इज दिस, ठीक है। इसका क्या लॉजिक है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, मैं तो नहीं समझ पाया इतने सालों में, ठीक है, ढंग से, कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है, कैसे ये निकल के आता है, एंड इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग टू डू, ठीक है। और मुझे लगता था कि यूपीएससी ये पूछेगा भी नहीं, राइट। बट रियल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो समथिंग जो, सॉरी, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो समथिंग जो नॉर्मली एक एमेच्योर व्यक्ति समझ नहीं सकता कि व्हाट इज इट, ठीक है। वेटेड क्या है वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, येट दे आस्क्ड इट इन 2022, राइट, दे आस्क्ड इट इन 2022। तो हाँ, मेरे को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, एंड दैट इज़ अ क्वेश्चन जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है, ऐसा क्वेश्चन है जो आप रट्टा मारो तो ही समझ में आएगा, वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, रट्टा मार लो तो हो जाएगा, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, रट्टा इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अगर आप ये सोचो तो बिना रट्टा मारे कर लोगे, नॉट गोइंग टू हैपन। तो व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू रट्टोफाई बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस एज इट इज, ठीक है। एज इट इज रट्टा होना है, कोई लॉजिक नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आपको पता है कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, ठीक है, उसी से याद रखो। जिनको नहीं पता है, रट्टोफाई दिस, ठीक है, रट्टोफाई दिस सो दैट इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड वी कैन डू इट। नाउ ये जो नीचे लिखा है, जीवीए बेसिक प्राइस इज इक्वल टू जीवीए फैक्टर कॉस्ट, व्हाई इट इज बीइंग रिटन, बेसिकली दे आर सेइंग ये जो जीवीए फैक्टर कॉस्ट है और ये जो जीवीए बेसिक प्राइसेस है, ये कह रहे हैं ये दोनों इक्वल ही हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। वाई यू नो सर इज सेइंग इज दैट ये जो प्रोडक्शन और प्रोडक्ट टैक्सेस ये जब होता है, प्रोडक्शन टैक्सेस, अगर आप इसको डिराइव करोगे तो आपको समझ में आएगा प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये नेग्लिजिबल है, राइट। हाँ, तो ये नेग्लिजिबल होता है। प्लीज ट्राई टू डू दिस, इसको स्क्रिबल करके देखना, ठीक है, कि हाउ दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन, राइट। डू दिस, प्लीज डू दिस, मतलब ये जो यहाँ पे जीवीए, हाँ, ये जो जीवीए बेसिक प्राइसेस लिखा है ना, इसको यहाँ जीडीपी एमपी और प्रोडक्ट टैक्स वजह से वो करके देखना, ठीक है, ट्राई टू डू दिस। तो बेसिकली दिस इज नॉट इक्वल पर से, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इक्वल नहीं है, बस ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। मेनली यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये जो यहाँ पे बोला गया है, ये बोला गया है कि क्योंकि प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज इज नेग्लिजिबल, उतना कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है, ये जो पार्ट है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो दैट इज वाई जीवे बेसिक प्राइसेस इज इक्वल टू जीवे फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों इक्वली हो जाते हैं, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है दिस इज नेग्लिजिबल, दैट इज वॉट दे आर सेइंग, राइट, सिंपल सी चीज़ है, राइट। चलो गौरव, तुम वो खोल के बैठे हो क्या? यू शुड नॉट ओपन योर बुक्स व्हेन यू आर डूइंग एक्टिव रिकॉल, ठीक है, बुक्स मत खोलना, ठीक है। चलो एनीवे लेट्स कम टू आईकॉर, ठीक है, आईकॉर पे आते हैं। चलो, अरे ये वही गड़बड़ हो गया, एक मिनट, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, या ये नेशनल इनकम छोड़ दो, या
सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो है व्हाट इज दैट कैपिटल आउटपुट रेशियो और आईकॉर दोनों डिफरेंट होते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि आईकॉर पूछा है या कैपिटल आउटपुट रेशियो पूछा है। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको पता है कैपिटल अपॉन आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आईकॉर इज चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट। ठीक है, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट। और आई होप आपको पता है वो कैसे आता है। ठीक है, परसेंट इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे लेके आ सकते हो, दैट ऑल्सो यू कैन इन्वेस्टमेंट भी आप उसको ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग दैट इनटू उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दैट फॉर्मूला। अब मैं आईकॉर के फॉर्मूला में इतना ही जाऊंगा, आई गो टू द कॉन्सेप्ट स्ट्रेट अवे। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इज दिस, इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट नेसेसरली अकर इफ देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, ट्रू और फॉल्स। नेसेसरली पे ध्यान देना, इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट नेसेसरली अकर इफ देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, गुड, ट्रू, ट्रू, विल नॉट नेसेसरली। ठीक है अब जो लोग ट्रू बोल रहे हैं वो रीजनिंग दो, आई वॉन्ट टू नो द रीजनिंग। जो लोग ट्रू बोल रहे हैं वो लोग रीजनिंग दो, और ओम ने फॉल्स बोला है तो ओम फॉल्स वाली भी देना, आप भी फॉल्स बताना, बट पहले ट्रू वाले सुनना है मुझे। वाई डू यू थिंक सो? नॉट नेसेसरली लिखा है, तुक्केबाजी वीडियो, कट इट। इसके अलावा अदर फैक्टर्स, वो जिसने बोला अदर फैक्टर्स भी तो होते हैं, वेरी गुड। और कोई रीज़न? प्रिंस ने बोला सेम, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। दीक्षा कैन यू एक्सपैंड ऑन दिस एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल? कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, ठीक है, और कैपिटल फॉर्म हुई है, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो के हिसाब से कैपिटल तो बननी चाहिए, मतलब आउटपुट तो बढ़ना ही चाहिए, चाहे कितना भी हो। एफिशिएंसी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। कैपिटल फॉर्मेशन यूजिंग डेट भी हो सकता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन तो हुआ ना, डेट से हुआ तो भी कैपिटल फॉर्मेशन तो हुआ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। डिपेंड्स ऑन कैपिटल आउटपुट रेशियो। नो, ओके अनन्या, चलो लेट्स कीप द कैपिटल आउटपुट रेशियो एट 0.0001। आउटडेटेड टेक छोड़ दो, प्रेजेंट टेक में कुछ तो होगा ना, नेगेटिव, कैन इट बी नेगेटिव? तो हाउ डज इट डिपेंड ऑन कैपिटल आउटपुट रेशियो? वी आर जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, डोंट थिंक, मतलब ये मत सोचना आई एम जस्ट ट्राइंग टू चैलेंज यू। ठीक है, डेलिबरेटली, नॉट ट्राइंग टू पिक यू, ध्यान रखना सब लोग। ठीक है, जस्ट ट्राइंग टू चैलेंज यू। ओके, टेल मी भाई, 0.0001 है, राइट? सपोज करो कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका 0.0001 है, राइट? सपोज करो, चलो हाई है, ओके, लेट्स अज्यूम दैट इट इज कुछ भी 10 लाख है। सपोज करो कैपिटल आउटपुट रेशियो 10 लाख है, 0.001 तो बहुत एफिशिएंट हो गया। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट 10 लाख है। अब तो क्या 0.001 भी इंक्रीज नहीं होगी इकोनॉमिक ग्रोथ? मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन, ये कैपिटल आउटपुट रेशियो इज नॉट द रीजनिंग, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मिस एलोकेशन का भी कोई सेंस नहीं है, डिमांड एंड अदर फैक्टर्स विल आल्सो इफेक्ट। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई हैड टोल्ड यू पहले भी कि यू हैव टू अज्यूम, जो ओजस ने भी रीजनिंग दी, इट इज एब्सोल्युटली गलत। आप नहीं अज्यूम, आपको किसने बोला कि वो वेरिएबल्स चेंज होंगे? यही मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे तो कुछ भी आप आंसर कर दोगे। ठीक है, वो वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने बोल दिया वो व्हाट इफ वो चेंज हो जाए, फिर व्हाट इफ तो कुछ भी हो सकता है ना, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यहाँ पे आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट नेसेसरली, अगर आप एज्यूम करो सिंपल चीज कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन से क्या हो सकता है, बस आप ये देखो, क्या उसके दो सिनेरियो हैं, कोई और सिनेरियो है? कैपिटल फॉर्मेशन से क्या दो चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं? कोई नहीं। ठीक है, यू हैव टू अज्यूम दैट अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपने अज्यूम कैसे किया कि कंजम्पशन कम हो जाएगा? ऐसे तो कोई क्वेश्चन ही क्रिएट हो सकता ना, फिर देयर इज नो डेफिनेट आंसर टू एनीथिंग, राइट? देयर इज नो डेफिनेट आंसर टू एनीथिंग, एंड दिस स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस। इन जनरल आपका एक, जब जहाँ पे भी नेसेसरली होगा वो गलत ही होगा, इन जनरल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जान के पिक किया है, बिकॉज सर ने अपनी 550 क्वेश्चन में ये दे रखा है, दैट इज आई हैड पिक दिस। ठीक है, एंड इट इज नॉट अ गुड, वेरी वेल डिजाइन क्वेश्चन ऑल्सो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट आई, इस क्वेश्चन को सीरियसली मत लेना। इस क्वेश्चन से मैसेज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, व्हाट इज द मैसेज? अज्यूम दैट अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, अनलेस कैपिटल फॉर्मेशन से वो चीजें इफेक्ट हो रही थी। अगर ओजस बोलते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन से कंजम्पशन इफेक्ट हो सकता है, अगर उससे उससे इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हो रहा होता, या उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्ट हो रहा होता, देन डेफिनेटली यू कुड हैव कम टू दैट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ विल नॉट नेसेसरली अकर इफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, आंसर तुम दे देते इसका, व्हाट इफ देयर इज कोविड। ठीक है, व्हाट इफ देयर इज कोविड, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो फिर नथिंग वर्क्स। ठीक है, नथिंग वर्क्स, फिर सारे कोरिलेशंस खत्म हो जाएंगे। तो यू हैव टू अज्यूम अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है, एंड यहीं पे ही मॉक टेस्ट भी बहुत बर्बादी करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिजाइंड बाय गुड इकोनॉमिस्ट्स, राइट? अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, सो इट इज फॉल्स। ठीक है, इट विल लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ विल हैपन। अगर इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, अज्यूमिंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, ऑब्वियसली अज्यूमिंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। ठीक है, बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन के अलावा से कुछ होता है, लॉस होता है, कोई नेगेटिव चीज होती है? नहीं होती। आप बस ये अज्यूम कर रहे हो कि कोई और वेरिएबल आके कंजम्पशन को इफेक्ट कर जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन तो इसे इफेक्ट नहीं करेगा ना।
ठीक है, तो अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी, राइट। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब बताओ मुझे ये क्वेश्चन, एग्जाम में भी फॉल्स होगा, बिल्कुल फॉल्स होगा, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सी, अच्छा, सी ओके, अच्छा। वाई दे विल बी नो इफेक्ट ऑन आइकॉर, अब बताओ इसका रीजन, इसका रीजन भी सुनो, रहने दो, मत बताओ, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। और ये कंप्लीट भी हो गया, विवेक, 17th क्वेश्चन, नाइस, या टेल मी आंसर दिस। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। डू यू सी द आंसर, 16th का आंसर 17th में दिख रहा है आपको? 16th का आंसर 17th में दिख रहा है आपको? कितने लोगों को दिख रहा है कि अपना जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। कैपिटल आउटपुट रेशियो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कैपिटल आउटपुट, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन जो है इट इज़ नॉट अ फैक्टर इन आइकॉर। आइकॉर किस पे डिपेंड करता है? आइकॉर कैपिटल फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता पर से, राइट। आइकॉर तो डिपेंड करता है किस पे, या फिर कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड किस चीज़ पे करता है? डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन अगेन दीज टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लेबर, स्किल्स। अगर आपके स्किल्स बढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगी, तो डेफिनेटली आपका जो है आइकॉर होगा ही होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। अब आपसे अगर मैं बोलने लगूँ कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो क्या कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ेगा, वो सॉरी कैपिटल आउटपुट रेशियो घटेगा? तो आप बोलोगे नहीं, क्वालिटी ऑफ लेबर घटिया होगी तो, ठीक है, ऐसे नहीं होता, मतलब समझ रहे हो आप? टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होगी तो इट इज गोइंग टू लीड टू कैपिटल आउटपुट रेशियो का डिक्रीज एंड इट इज गोइंग टू लीड टू एफिशिएंसी, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें उल्टा होता है, ये भी लोग भूल जाते हैं, ठीक है, उल्टा, जितना कम होगा उतना इट इज बेटर, ठीक है, उतना इट इज बेटर, ठीक है। चलो, ओके, नाउ डज अ रिसेशन नेसेसरली इंप्लाई रिडक्शन इन जीडीपी? डज अ रिसेशन नेसेसरली इंप्लाई रिडक्शन इन जीडीपी? कैन यू गाइस सेइंग यस? ये प्रिंस ने यस करके नो बोल दिया, ओके, मानसी सिंह नो। डज इट इंप्लाई रिडक्शन इन जीडीपी? ओके, नो, नो, ओके, नो। अच्छा, नाउ अब आपने नो बोला है ना, अब मुझे बताओ रिसेशन की डेफिनेशन। राजेश ने बोला यस, सोनाली ने बोला यस, ठीक है, आपको क्या लग रहा है यस आंसर है? जो लोग, ठीक है, पता नहीं, आई डोंट नो। टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसेशन। वेरी गुड। हाँ ओम, आपने डेफिनेशन जो बोली है वो, और अब अपना आंसर मैच करो, जो आपने अब डेफिनेशन बोली। नहीं, हाँ, ओजस तुम बोल रहे हो नो और फिर नेगेटिव ग्रोथ रेट भी बोल रहे हो, ये दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे। वहां पे लिखा है, हाँ, हाँ, नेगेटिव, तो फिर आंसर नो कैसे हो सकता है ओजस? नेगेटिव ग्रोथ रेट आपने बोला और फिर नो आंसर दे रहे हो, हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल। ओम, समझ में आया? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? रिसेशन बाय डेफिनेशन मीन्स नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो आज की डेट में आप बोलते हो कि इंडिया कितने 8% ग्रोथ रेट पे चल रहा है, ये माइनस में होगा, और वो भी 2 क्वार्टर के लिए। दैट मीन्स अ रिसेशन नेसेसरली इंप्लाइज रिडक्शन इन जीडीपी 100%। डेफिनेशन उसकी वो है, ठीक है, डेफिनेशन उसकी वो है। नाउ अगर मैं यहाँ पे आपसे पहले स्लो डाउन पूछता ना तो आप लोग सही आंसर देते, ठीक है। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एक्टिव रिकॉल हैज टू बी रैंडम। इसलिए कभी कोशिश करो कि लीनियर जो पढ़ते हो ना उसको तोड़ो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन आपसे पहले पूछता और फिर रिसेशन पे आता, आप लोग पक्का सही आंसर देते, आई कैन गारंटी दैट। इसलिए मैंने सेकंड पे जो है आपका जो है स्लो डाउन किया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ट्रू और फॉल्स, देयर कैन बी अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग अ स्लो डाउन। पहले तो इस स्टेटमेंट का आंसर दो, देयर कैन बी अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग अ स्लो डाउन। कैन बी अ, यस यस यस, कैन बी अ, ठीक है। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। नाउ गिव मी द डेफिनेशन ऑफ स्लो डाउन, गिव मी द डेफिनेशन ऑफ स्लो डाउन, बताइए। वेरी गुड, समझ में आ गया। सो स्लो डाउन में ग्रोथ रेट नेगेटिव भी हो सकता है एंड इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। देर इज ओनली वन कंडीशन, देर हैज टू बी रिडक्शन इन द ग्रोथ रेट। मतलब 8% अगर 6% हो गया ग्रोथ रेट, जीडीपी तो इंक्रीज होगी बट इट इज इंक्रीजिंग एट अ स्लोअर रेट, तो स्लो डाउन। 6% से 4% हो गया, देन इट ऑल्सो इट इज अ स्लो डाउन। 6% से 2%, 2% से 0, और 0 से -2% भी हुआ तो भी वो स्लो डाउन है। जब ये 0 से -2, ये जो माइनस में चल रहा है, ये 2 महीने 2 क्वार्टर लगातार चलेगा, तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ रिसेशन, राइट, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ रिसेशन। मतलब स्लो डाउन में आपकी जीडीपी बढ़ेगी, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है,
It can increase also, it can decrease also, right? This is the only thing that you have to understand. यही confusion है. It may be the GDP increase, GDP में भी the growth rate जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बस वो कम होना चाहिए, पहले से कम होना चाहिए. दैट इज द ओनली कंडीशन. ठीक है, ओके, राइट. व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी नाउ? व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी? देखो 10 सवा 10 तो ऐसी बज गई. तेज करने पे भी जल्दी टाइम, यू नो, इट टेक्स टाइम. Maximum utilization of factors of production, full employment of resources. Very good, very good. And do you guys know it's a like this is a mains question? Do you know it is a mains question? Nairu, what is Nairu? Diksha, can you elaborate? Nairu क्या है? 2020 question. Very good, Prince. Very good. मैंने मेंस में लिखा था अपने पोटेंशियल. थैंकफुली सर की बुक पढ़ी थी, तो यू नो पोटेंशियल आउटपुट पे मैं ग्राफ बना के आ गया था पोटेंशियल जीडीपी वाला. उस समय बस उन्हीं की बुक में था ये, और किसी बुक में नहीं था. वेरी गुड. ठीक है, सो पोटेंशियल जीडीपी वही है. एंड पोटेंशियल जीडीपी क्या है? मतलब इट इज़ गोइंग टू ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है. एंड रियल जीडीपी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है. ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी इज दैट. ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है. चलो, लेट्स कम टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. वी आर गोइंग टू वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन. ठीक है, लेट्स कम टू माइक्रो इकोनॉमिक्स नाउ. सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये टेबल. ठीक है, ये टेबल मैंने आपके लिए बनाया है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको रट्टा मार लो. माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये ज़रूर याद रखना. ठीक है, रट्टा मारो, आगे बढ़ो. अच्छा, एक और चीज़ बिफोर वी मूव अहेड, वॉट एवर यू डिराइव फ्रॉम दिस सेशन, प्लीज़ डू नॉट गो इन टू दिस ये पीपीटी की नॉनसेंस. ठीक है, जो भी यहाँ से लग रहा है चुपचाप अपने नोट्स में या किताब में, अगर आप नोट्स बना रहे हो वेरी गुड, वहीं पे ही ऐड कर लो अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है. यहाँ पे किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन आया या किसी भी चीज़ आपको लगा कि यार आपको आती थी, स्टिल यू फेल्ट दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट, गो बैक टू योर बुक एंड राइट डाउन. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था, ये भी लिख देता, दिस इज नॉट दिस, वहाँ पे जाके लिख देता था, सो दैट नॉट दिस, मतलब नॉट दिस जब लिखोगे ना आप तो आपको आएगा कि ये ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये कर रहे हो अपना रिसेशन वाला पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे लिख देना जाके कि इट इज़ नॉट पॉजिटिव ग्रोथ रेट, नेवर पॉजिटिव ग्रोथ रेट, ये जाके लिख दो. ऐसे करोगे ना तो माइंड विल बिकम मोर एंड मोर एक्टिव. ठीक है, जब आप रीड करोगे कि नॉट ये, नॉट ये, ध्यान रखना. ये मॉक टेस्ट जब आप अपनी फर्स्ट रीडिंग करोगे, ट्राई एंड डू दिस. जहाँ पे भी किस तरह क्वेश्चन में फंस रहे हो, जो स्टैटिक का क्वेश्चन है वो वहाँ पे जाके बुक में ही ऐड करो. ठीक है, या फिर अपने नोट्स में जाके ऐड करो कि नॉट दिस, नॉट दिस. ये अगर मान लो आपको लग रहा है ये टेबल बहुत अच्छा है, कितना टाइम लग रहा है इसको आपको करने में? 2 मिनट लगेंगे. जस्ट ड्रॉ दिस देयर मेरे जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए. ठीक है, ओके. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट आर गिफिन गुड्स? दोस्तों चीटिंग तो नहीं कर रहे ना? चीटिंग तो नहीं कर रहे ना? इंफीरियर गुड. वेरी गुड. ठीक है, ठीक है. हम्म. Teacher is saying consumption decreases with increase in income. Very good. Law of demand break. Very good. वेरी गुड ओजस. ठीक है, वेरी गुड दीक्षा, बहुत सही आपने, और बाकी सबने भी सही दिया एकदम. इंफीरियर गुड्स होते हैं, और जब भी इंफीरियर गुड्स, कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ इंफीरियर गुड्स फ्रॉम योर लाइफ, या कुछ भी जो आप, हम लोगों की मोस्टली लोगों की इनकम्स बढ़ी हैं, ऐसा गुड जो आप पहले यूज़ करते थे अब नहीं यूज़ करते हो, एंड यू मूव टूवर्ड्स अ बेटर गुड. केरोसिन, केरोसिन नहीं, केरोसिन बड़ा. ठीक है, ये तो बुक किताब ही है, कुछ अपनी लाइफ से दो समथिंग. ओके, बाजरा. देखो दिस इज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दीक्षा, बाजरा जो आपने बोला, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे मिलेट्स को लेके इट इज कंसिडर्ड एज अ पुअर मैंस मील. दिस यू कैन राइट इन योर मेंस, व्हाई मिलेट्स की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है. इट इज कंसिडर्ड एज अ पुअर मैंस मील. ठीक है, टेस्ट नहीं होता, तो बाजरे को इंफीरियर गुड समझ लो, लेकिन न्यूट्रिशनली इट इज सो फार सुपीरियर. राइट, की बैड फोन. इट इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस मिलेट है ना. ठीक है, स्टिल इंडिया में यही नोशन है, इट इज अ पुअर मैंस मील. यही हम सब में यही नोशन है. कौन खाता है? अब चेंज हो रहा है डेफिनेटली, और महंगा भी मिलता है अब सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, डिमांड बढ़ रही है ना, इकोनॉमिक्स. या अरे आप लोगों ने एग्जाम्पल नहीं दिया, सब केरोसिन रट के आए हो. कुछ दो यार, स्किन केयर वगैरह, हाउ यू हैव मूव्ड फ्रॉम फेयर एंड लवली टू यू नो बेटर सैलिसाइलिक एसिड. कुछ तो बताओ ओजस, कुछ तो बताओ. हाउ वी हैव मूव्ड फ्रॉम, या पॉन्ड्स वैसलीन से अब हम ऊपर जा चुके हैं, अब हम मामा अर्थ पे आ चुके हैं गाइस. निविया टू मिनिमलिस्ट, नाइस. ओके, गुड गुड, यस, वेरी गुड सेटअप, नाइस. डेविड ऑफ, वेरी गुड. ठीक है, चलो दैट यू गेटिंग, यू आर अप्लाइंग इट नाउ, अब आप अप्लाई कर रहे हो अपना. ठीक है, केरोसिन इज सच अ सो मिडिल क्लास एग्जाम्पल. ठीक है, ग्लाइसरीन टू सेरामाइड मॉइस्चराइजर. ओके, सेरामाइड मॉइस्चराइजर ये मैंने नया नया सुना है. यस, समरी सिंह एबिबास टू एडिडास. दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक. गुड. ठीक है, तो गिफिन गुड्स जो है इंफीरियर गुड्स होते हैं. ठीक है, बट द पॉइंट इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट समटाइम्स ऐसा होगा, यू नो, देर इज गोइंग टू बी नो सब्सटीट्यूट फॉर देम. ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स तो होते हैं. ठीक है, नाउ यहीं पे मुझे आपको बताना है दैट द प्राइस राइज इज गोइंग टू कॉज द डिमांड राइज, एंड दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन, आपका ये चीज़ ध्यान रखना,
दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड एंड गिवन गुड। ठीक है, इंफीरियर गुड जो आपने बात बोली थी कि अगर प्राइस राइज और इनकम होगा, वो तो चलो इंफीरियर गुड के लिए, ठीक है, बट गिवन गुड्स फिर क्या स्पेशल है? गिवन गुड्स आर नॉट इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स आर स्पेसिफिकली दोज इंफीरियर गुड्स दैट हैव नो सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो जितने भी आपने एग्जांपल्स दिए वो इंफीरियर गुड्स के एग्जांपल थे, दे वर नॉट गिवन गुड्स के एग्जांपल। ठीक है, तो गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स दैट हैव नो सब्स्टिट्यूट, राइट, एंड दैट इज वाई प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन जो होता है कंप्लीटली इनवर्स होता है। ठीक है, प्राइस राइज का और डिमांड का जो कोरिलेशन है दैट इज गोइंग टू इनवर्स। ठीक है, यानी कि प्राइस राइज होगा तो डिमांड राइज होगा। ठीक है, दैट इज अ गिवन गुड। ठीक है, दोबारा से जाके डेफिनेशन देखना प्लीज। ठीक है, वी हैव ऑल डन दिस रॉन्ग। चलो, वेबलिन गुड। हाँ जी, वेबलिन गुड क्या और दूसरा नाम बताना कोई? लग्जरी गुड के अलावा और नाम पता है? एक और नाम भी है, एक वेरी इंटरेस्टिंग नाम है। वी कॉल इट टू समवन यू नो हु शोज ऑफ, इफ यू गाइज थोड़ा बहुत ऐसे ही। यस, वेरी गुड सौम्या, या समवन हु यू नो वेरी स्नूटी एंड ऑल दोस थिंग्स। यस, स्नॉब, वेरी गुड, स्नॉब गुड्स, या। ठीक है, स्नॉब गुड्स होते हैं एंड दे आर स्टेटस गुड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यही सब आपका गुच्ची, अरमानी, ठीक है, पीछे रोड दी जवानी, ठीक है, ये क्या है? ये सब कुछ नहीं है। देखो अगर आप अपना ये ले लोगे, राइट, राइट, अरे वो कौन सा बैग था जिसको लेके वो यू कैन गेट दैट सर्टिफिकेट? ठीक है, आई कांट से मोर बट यू गाइज नो, या विच बैग वाज देयर? या नो 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 नो, दैट बैग इज नॉट, नो 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 नो, अरे गाइज प्री हैंड होल्डिंग वालों को पता होगा। ठीक है, चलो, नहीं नहीं नहीं, ये आप समझे नहीं सर्टिफिकेट, कुछ लोगों को ही समझ में आएगा। नहीं, वो मैं बोल नहीं सकता विद सर्टिफिकेट, बाद में बताएंगे जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, वेबलिन गुड, ठीक है, चलो वेबलिन गुड जो है स्नॉब अपील गुड्स होते हैं, राइट, बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, व्हेन द रिकॉर्डिंग इट्स ओवर, राइट। सो वेबलिन गुड्स जो होते हैं दे आर स्नॉब अपील गुड्स, एंड यहाँ पे जितना आपका प्राइस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज इनका एक ही चीज़ है कि प्राइस क्या है उस चीज़ का, राइट। इट डज नॉट मैटर कि उसमें कितने की लागत हुई है, राइट। द ओनली थिंग इज दैट दे आर स्टेटस गुड्स, कि इतना महंगा है तो मेरे पास है, दैट इज द ओनली अपील दैट दे हैव, राइट। सो दैट इज वाइट इज अ पॉजिटिव डिमांड स्लोप जस्ट लाइक द गिवन गुड्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, प्राइस राइज विल कॉज डिमांड राइज, राइट। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी पर से आई डोंट वांट टू डिस्कस इट मच, ठीक है, बिकॉज वी हैव लेस टाइम, बट आई वुड गिव यू नोट्स प्लस प्राइस इलास्टिसिटी के भी। ध्यान रखना प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि बेसिक, हाँ, कितने चेंज में, ठीक है, कितने चेंज में नहीं, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको बाद में बात करेंगे। ठीक है, आई टॉक अबाउट दिस लेटर, राइट। चलो एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह सब बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट, पहले रुक जाओ, पहले इनकम इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अगर आप नॉर्मल गुड की बात करोगे, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी जो डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है, नॉर्मली इफ वी सी, सो दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट। नाउ एक इलास्टिक गुड का मतलब क्या है? ठीक है, एक इलास्टिक गुड का मतलब ये है कि अगर आपकी 10% से इनकम बढ़ती है तो डिमांड प्राइस 10% से ज़्यादा होगा, राइट, यूनिटरी नहीं होगा, राइट। इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय मोर देन 10%, उससे ज़्यादा का प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी का ग्राफ नहीं बनता है, यहाँ पे इनकम और उसका बनेगा, क्वांटिटी का ग्राफ बनेगा, राइट। तो इन इलास्टिक गुड्स क्या होंगे? इन इलास्टिक गुड्स का मतलब क्या है? इन इलास्टिक मतलब आपकी डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है, आपकी डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम। नाउ व्हाट काइंड ऑफ गुड्स डू यू एक्सपेक्ट हियर? जब आपकी इनकम चेंज हो रही है तो आपकी डिमांड ही नहीं चेंज हो रही, इन इलास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। ठीक है, एसेंशियल गुड्स, राइट, ठीक है, एसेंशियल गुड्स, राइट। तो यूजुअली वही होगी, यूनिटरी में कुछ भी हो सकता है, कोई खास एग्जांपल हमारे पास है नहीं। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट इंफीरियर गुड्स, यहाँ पे आता है अब इनकम इलास्टिसिटी वाला जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, दैट अगर आपकी यहाँ पे इनकम बढ़ेगी तो आपका क्या होगा? डिमांड जो है वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब अगर आपकी 10% से इनकम इंक्रीज हुई तो आपकी डिमांड राइज जो है वो होने ही नहीं वाला, डिमांड राइज अदर डिमांड जो आपकी फॉल कर जाएगी, दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इनकम चेंज, इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम चेंज होने पे उसकी डिमांड क्या चेंज होती है, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी, राइट। तो देयर इज गोइंग टू बी फॉल इन डिमांड, इसमें एग्जांपल आपका एडिडास है, पास केरोसिन वगैरह ये सब बात होगी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू वेर इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी की भी बात कर ली हमने, ठीक है, ये भी हो गया, एसेंशियल्स की बात हो गई। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कहाँ पे होगी? कोई एग्जांपल दे दो, वैसे तो मोस्टली होने ही वाला है सही। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, टी कॉफ़ी, नॉर्मल गुड, लग्जरी गुड्स है ना, वो भी आपकी इंक्रीज हो सकती है, जो महंगी गुड्स हैं वहाँ पे भी आपका जो है इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। थोड़ी बहुत सप्लाई की बातें हैं वो कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट स्लाइड बिफोर वी एंड दिस एक्टिव रिकॉल सेशन। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सप्लाई इज अ स्टॉक। अब स्टॉक और फ्लो क्या होता है? अगेन आई एम गारंटिंग यू, अगर आप एसएफजीबी की प्रैक्टिस करोगे पक्का स्टॉक और फ्लो पे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये इन लोगों का प्रीमियम चीज़ है और बहुत ही इरिटेटिंग क्वेश्चन होता था, मैं तो हमेशा गलत करके आता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक जो होती है ना वो हमेशा, वेरी गुड विनी, स्टॉक हमेशा, यस वेरी गुड, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफाइन कर सकते हो आप। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्टॉक को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपका जो है फ्लो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन होता है, वेरी गुड।
वेरी गुड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कभी भी आप फ्लो को है ना, कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बता सकते विदाउट टेलिंग कि यार ये टाइम पीरियड क्या है ना, विदाउट टेलिंग कि किस किस टाइम की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो वो फ्लो है और वो स्टॉक है। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई इज अ स्टॉक, ठीक है। यू कैन टेल एट अ पर्टिकुलर टाइम की इस समय इतनी सप्लाई है, ठीक है। उसको आप क्वांटिटेटिवली बता सकते हो कि भाई हाँ 4-5 kg जो है ये है इस समय, वी कैन टेल दिस, ठीक है। दैट इज इनकम इज अ फ्लो, कि भाई इनकम आप ऐसे नहीं बता सकते कि इनकम कितनी, पूछना पड़ेगा आपको, ठीक है, मंथली और अपना एनुअली, ठीक है, पीरियड में आती है वो, राइट, ठीक है। सो एनीवे, सप्लाई बेसिकली क्या दिखाती है कि कौन कितना, यू नो व्हाट इज द विलिंगनेस टू सेल, राइट। विलिंगनेस टू सेल आपकी क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लास्ट स्लाइड आपकी हो चुका है, आपका एक्टिव रिकॉल ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। एनीवे, नॉर्मली जो है आपकी जो सप्लाई है वो कैसे चेंज होती है। अच्छा, इस पे आप बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। कब आपकी सप्लाई जो है परफेक्टली इनइलास्टिक होगी? प्राइस विल नेवर चेंज, मतलब कितना भी प्राइस इंक्रीज हो जाए सप्लाई उतनी रहेगी। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दिस? प्राइस कितना भी हो जाए सप्लाई उतनी ही रहेगी। Hmm, ये तो देखो, आप जो एग्जांपल दे रहे हो ब्रेड, वो तो इंक्रीज हो सकता है, एकदम से नहीं इंक्रीज होगा। वेरी गुड मोनालिसा वाला। अच्छा, व्हाट अबाउट लैंड गाइस? व्हाट अबाउट लैंड? इजंट इट? कितना भी आप वो कर लो, प्राइस कैन नेवर चेंज सप्लाई। बट फिर डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं उसका, वो भी हो सकता है। व्हाट अबाउट, परफेक्ट एग्जांपल विनी ने दिया है, ठीक है, क्योंकि विनी विवेक सिंह पढ़ के आई है मोस्ट लाइकली, ठीक है। इज द एग्जांपल ऑफ मोनालिसा की पेंटिंग। आप कितना भी वो कर लो, प्राइस बढ़ा लो, सप्लाई तो उतनी रहेगी, राइट, बिकॉज इट इज़ अ यूनिक गुड, वो उतना ही रहेगा, राइट। सेम गोज फॉर, तो जो लिमिटेड चीज़ें हैं, जो लिमिटेड चीज़ें हैं वो उतनी ही रहेंगी, ठीक है। तो प्राइस कैन नेवर चेंज द सप्लाई, ठीक है। अब जो आपने क्रॉप्स वाले एग्जांपल दे रहे थे वो ये थे कि वो इतनी जल्दी, इट इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट इनइलास्टिक, बिकॉज इस सीजन की क्रॉप तो कट गई ना, अब कहाँ से बढ़ाओगे उसको, ठीक है। तो प्राइस कितना भी बढ़ जाए सप्लाई चेंज नहीं होगी, अब तो अगले सीजन में आएगी, राइट। अगर आपकी, इसलिए या फिर हम क्या करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। जब भी हमारी दाल वगैरह महंगी हो जाती है, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम? मोजाम्बिक से लेके आते हैं दाल, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तो अब क्रॉप हो गई ना, अब वो आगे बढ़ नहीं सकती, तो दैट इज वाई इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, वो कुछ हो ही नहीं सकता फिर उसका, राइट। दैट इज वाई फिर हम इंपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक चीज़ें हैं, वेयर प्राइस कैन नेवर चेंज द सप्लाई, ठीक है। यूनिटरी का कोई खास एग्जाम्पल नहीं होता है। व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक? इनफाइनाइट सप्लाई है, बियॉन्ड, मतलब प्राइस कुछ भी हो, इनफाइनाइट सप्लाई। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? माहिर यूपीएससी सीट्स मुझे लग रहा है इनफाइनाइट सप्लाई पे आ गई है, बच्चों ने इतनी रिक्वेस्ट करी है, इनफाइनाइट सप्लाई हो गई है। या लिमिटेड लिमिटेड सीट्स, या ओके, बताइए। ऑक्सीजन, ओके वेरी गुड, ऑक्सीजन, ओके। इज ऑक्सीजन अ गुड? ओके, पब्लिक गुड तो है, बट ऑक्सीजन का प्राइस है। ऑक्सीजन, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन इन कोविड, राइट। परफेक्टली इलास्टिक, बताइए। इनफाइनाइट सप्लाई, बियॉन्ड, इनफाइनाइट सप्लाई है। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? अच्छा सा एग्जांपल दो थोड़ा। हम्म, पेट्रोल इनफाइनाइट सप्लाई है, कितना भी प्राइस बढ़ जाए ऐसा नहीं। मनी, टी वाटर, ओके, ठीक है। तो एनीवे, देखो इसका क्या है, सिंपल सी चीज़ है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं परफेक्टली इलास्टिक का, नेटफ्लिक्स, ठीक है। अगर आप 400 रुपये देते हो या जो भी आपका प्लान है, इनफाइनाइट सप्लाई है, उससे कम जीरो सप्लाई है, राइट। कितने भी लोग ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे क्लाउड और वो सब, प्लीज़ वो मत लाना, मैं बोल चुका आपको कांस्टेंट रखनी होती है चीज़ें, इतना नहीं दिमाग लगाना, ठीक है। तो प्लीज़ वो सब मत बोलना नेटफ्लिक्स में। बट यू नो इफ़ वी क्रिएट वन, फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहीं पे एक बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूँगा, ठीक है, आगे लाइफ में, अभी तो चलो हम ऑफिसर्स वाली वही इसकी तैयारी कर रहे हैं, ऑलवेज क्रिएट डिजिटल एसेट, ठीक है। इनफाइनाइट सप्लाई है, क्रिएट डिजिटल एसेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी इंडस्ट्री में क्या है, डिजिटल एसेट क्या है, वो हर साल नया नया बनता है, ठीक है। बट सपोज करो अगर मैं यूट्यूब पे कुछ चीज़ें डाल देता हूँ, या कोई किसी ने पीछे मृणाल की 2013 की वीडियो आज तक यूट्यूब पे चलती है, इनफाइनाइट सप्लाई, ठीक है। बियॉन्ड अ सर्टेन प्राइस नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट स्टिल, ठीक है, कुछ भी कर लो वो इनफाइनाइट सप्लाई है। डिजिटल एसेट्स ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनफाइनाइट सप्लाई है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा डिजिटल एसेट जरूर बनाएं, वो आपको कांस्टेंट स्ट्रीम देगा इनकम की, कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो माय यूट्यूब वीडियोस तो चलो ठीक है, बट इन जनरल, जैसे अली अब्दाल को आप जानते हो आप लोग, ठीक है, एक कोर्स क्रिएट कर रखा है यूट्यूब अकेडमी का, वो लाइव कोर्स नहीं है, रिकॉर्डेड कोर्स है, चलता रहता है। इनफाइनाइट सप्लाई, बियॉन्ड द सर्टेन, और बहुत महंगा कोर्स है वो, ठीक है, 20-30 हज़ार रुपये का कोर्स चलता है, सही चल रहा है, बढ़िया पैसे कमाए। इनफाइनाइट सप्लाई बट बियॉन्ड अ प्राइस, राइट। इस प्राइस के नीचे हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक, लेस सप्लाईज राइज देन द प्राइस, ये इसके लिए हो सकता है। जैसे अगेन यहाँ पे आ जाता है ये पल्सेस इन पोटैटो, आप एकदम से प्रोडक्शन जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक इसलिए मैंने बोला था, ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते। यस डेफिनेटली चेंज हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बट यू कैन नॉट चेंज इट इमीडिएटली,
ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, दैट इज द थिंग। रिलेटिवली इलास्टिक में तो काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है। एग्जांपल्स बस हम इसलिए दे रहे हैं सो दैट यू कैन इमेजिन। बहुत कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये वाले मोनालिसा की पेंटिंग ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पल्सिस पोटैटो ये सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मोस्टली हम आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोल रहे हैं सो दैट इट स्टेज विद यू, राइट। ठीक है, बाकी ये इनफाइनाइट सप्लाई में आप डिजिटल एसिड्स डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा जो चीज़ें होंगी आई विल शेयर द नोट्स विद यू ऑन टेलीग्राम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक यू डिड वेरी वेल, मोस्ट ऑफ यू हैव डन वेल। 30 पीपल आर देयर स्टिल। ठीक है, बट आई वांट टू टेल अगेन, जो पहले बोलता हूँ मैं हमेशा, दैट दिस जो नंबर है अटेंडेंस, यू नो, इट्स गोइंग टू टेक अ टोल। ठीक है, ये कम हो ही जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली एज वी मूव तो ये खत्म हो ही जाएगा। कम कम लोग आते हैं फिर, एंड आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, एंड एक्टिव रिकॉल भी फिर एक्टिव रिकॉल नहीं रहेगा। आई वुड वांट कि आप लोग लास्ट तक ये चीज़ें करें। ठीक है, लास्ट तक करना, डेली करना। कल टेस्ट है आपका, लेट्स सी कि कितना इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, हमारा कितना इंप्रूवमेंट आता है वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।